award holder is Mr. Nima Rinji Sherpa. उहाँको लागि पनि जोरदार ताली Mr. Nima Rinji Sherpa in recognition of his extraordinary achievement as the youngest person to summit all 14 of the world's 8,000-meter peaks at the age of 18. MS Entertainment presents campaign to promote tourism, art and culture. Our contribution to building a prosperous Nepal. Everest Tourism Award 2025. Our campaign to save Himalayas for sustainable tourism. Adventure Tourism Excellence Award. Mountaineering. We are still at the Mountaineering Adventure Tourism Excellence Award, and the next awardee is Mr. Sanu Sherpa. MS Entertainment presents campaign to promote tourism, art and culture. Our contribution to building a prosperous Nepal. Everest Tourism Award 2025. Our campaign to save Himalayas for sustainable tourism. Adventure Tourism Excellence Award. Mountaineering. Congratulations to Mr. Sanu Sherpa. So moving ahead, we are still at the Mountaineering Adventure Tourism Excellence Award, and the next awardee is Miss Purnima Shrestha. MS Entertainment presents campaign to promote tourism, art and culture. Our contribution to building a prosperous Nepal. Everest Tourism Award 2025. Our campaign to save Himalayas for sustainable tourism. Adventure Tourism Excellence Award. Mountaineering. It recognizes you all for historic achievement as the first person to summit Sagarmatha 3 times in a single climbing session, ladies and gentlemen. Congratulations, Miss Purnima Shrestha. So we're still at the Mountaineering, it's Adventure Tourism Excellence Award, and the next awardee is none other than Mr. Mingma Gyaljen Sherpa. उहाँको लागि पनि जोरदार ताली. Presents campaign to promote tourism, art and culture. Our contribution to building a prosperous Nepal. Everest Tourism Award 2025. Our campaign to save Himalayas for sustainable tourism. Adventure Tourism Excellence Award. Mountaineering. Yet congratulations, Mr. Mingma Gyaljen Sherpa ji. Yes, and I think you alikati mountain chadnu bhanda pani garo थियो. Anyway, so ladies and gentlemen, thank you very much, sir, for your kind presence. And Rajesh Ranjan sir, we would like to hear something from you. र उहाँको मुखारबिन्दबाट केही शब्द नेपालको लागि, केही शब्द माउन्टेनको लागि, केही शब्द पर्यावरणको लागि, अनि केही शब्द वातावरणको लागि, अनि केही शब्द मेरो लागि पनि. Over to you, Honorable Sri Rajesh Ranjan sir. नमो बुद्धाय. आप सबको जो मेरे लिए ईश्वर के समान है, देवतुल्य हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, विश्व और मानव कल्याण में आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी, आपकी साझेदारी, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता के दर्शन से श्रेष्ठतम सर्वोत्तम है. आप हमारे लिए भी और आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप अनुकरणीय हैं, आप पूजनीय हैं और आप वंदनीय हैं.
आप अनमोल भी हैं, आप बेमिसाल भी हैं। आपकी उपस्थिति गौरवान्वित करता है इस दुनिया के विराट संस्कृति को, विश्व के उस आध्यात्मिकता के भाव को जिसमें सिर्फ एक ही भाव है, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव और विश्व का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। ये जो मानव जीवन है, ये जो मानवतावादी आज विश्व के निर्माण में जिनकी भूमिका है, वो आप हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोत्तम हैं और आपसे ही विश्व के निर्माण की उम्मीद की जा सकती है। आप वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक पटल पर जब सकारात्मक और प्रगतिशील विचार की बात आती है तो आप सर्वप्रथम हो जाते हैं। इसलिए यहां जो लोग भी उपस्थित हैं, हृदय की गहराइयों से शिव की इस पवित्र धर्मस्थली पर जिनका रिश्ता भारत की आध्यात्मिकता से गहरा भाव हो, जिस आध्यात्मिक कर्मशील गुरु ऋषि इष्ट के रूप में राम और सीता की इस पवित्र धरती जानकी के स्थल को और पूरी दुनिया में जिन्होंने अपो दीपो भवा संगच्छध्वम समबद्धध्वम समवो मनान से जानता हूं, देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते, जिसने एक विराट भाव दिया संपूर्ण विश्व में एक परिवार का, एक दर्शन का। शिव भी यही, बुद्ध भी यही, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एक उत्कृष्ट विचार दिए। उस नेपाल की धरती पर भारत के 140 करोड़ लोगों की वो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अतिथि देवो भव, एक ऐसा भाव जिनका हर कदम मानवीय संघर्ष के लिए जाना जाता हो। ऐतिहासिक कर्मभूमि, दुनिया की सबसे बड़ा ज्ञान की तपोभूमि, वैशाली का वो समाजवाद, बुद्ध की धरती चाणक्य का वो विशाल भूमि, विक्रमशिला और नालंदा का वो संपूर्ण विश्व में एक उत्कृष्ट विज्ञान और अध्ययन पर आधारित विश्व निर्माण का वो एजुकेशन, विक्रमशिला और नालंदा, जिन्होंने पूरी दुनिया को आकर्षित किया हो। एक ऐसा भारत जिन्होंने हमेशा विश्व कल्याण की बात की हो। एक ऐसा भारत जिन्होंने वसुधैव कुटुंब के राह पर अनंत की ओर प्रगति किया हो। सार्वभौमिकता के दर्शन के साथ मानवतावादी सोच, विश्व बंधुत्व कायम हो,
मानव मानव एक हो, मानव का धर्म एक हो, इस भाव के साथ जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता के बदौलत, अपने सांस्कृतिक विचार के बदौलत, जिन्होंने क्रांति के पथ को अपना आवरण बनाया हो,